Welcome to Professor Benzine. This is Professor Benzine. Today we are discussing the third part of the solutions to NCERT questions of the third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video we will discuss solutions to exercise questions 17 to 24. So let's begin. 17th question is, how would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो सोडियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम की वो कम है मैग्नीशियम से, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम की ज़्यादा है फ्रॉम मैग्नीशियम. ऐसा क्यों? The first ionization enthalpy of sodium is more than that of magnesium. This is primarily because of two reasons. The atomic size of sodium is greater than that of magnesium. The effective nuclear charge on magnesium is higher than that of sodium. Effective nuclear charge सोडियम मैग्नीशियम पे ज़्यादा है और साइज़ जो है वो सोडियम का ज़्यादा है. फॉर द रीज़न द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम इज़ मोर देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम सोडियम. तो इसलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन फ्रॉम सोडियम. हेंस द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम. अब जब सेकंड की बात आती है, हाउएवर द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम. दिस इज बिकॉज after losing the electron, sodium attains the stable noble gas configuration. On the other hand, magnesium, after losing electron, still has one electron in the 3s orbital. In order to attain this noble gas configuration, it still has to lose one more electron. Thus, the energy required to remove the second electron in case of sodium is much higher than that of the required in case of magnesium. Hence, second ionization enthalpy of sodium is much higher than that of magnesium. अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव जब हो चुका है तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है. वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इन केस ऑफ मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, उसके बाद भी अल्टीमेट शेल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन बाकी है और उसके निकलने में बहुत कम एनर्जी लगती है. इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज़ मच लोअर दैन ऑफ सोडियम. Next question, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? किस वजह से ग्रुप में नीचे आने पे ionization enthalpy जो है वो घट जाती है in the main group elements? The factors responsible for the ionization enthalpy of the main group elements to decrease on moving down the group are below. पहला, increase in the atomic size of elements. As we move down the group, the number of shells increases. As a result, the atomic size also increases. शेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा तो distance between the valence electrons and the nucleus also increases. The electrons are not held very strongly, thus they can be removed easily. Hence, moving down the group, the ionization energy decreases. जब शेल बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा तो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो बाइंडिंग फोर्स बहुत कम है. जब बाइंडिंग फोर्स कम है तो उसको लूज़ करना बहुत आसान होगा, इसलिए जो एनर्जी है वो कम लगती है. दूसरा, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट. द नंबर ऑफ इनर शेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. देयरफॉर द शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड वेरी टाइटली बाय द न्यूक्लियस. Hence, the energy required to remove the valence electron also decreases down the group. जब अल्टीमेट शेल बहुत दूर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, तो अल्टीमेट शेल और न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो शील्डिंग बढ़ेगी तो जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द लास्ट शेल वो कम हो जाएगा. जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो अगेन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी. सो अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. Next, the first ionization enthalpy values in kilojoule per mole for group 13 elements are given. How would you explain that this deviation from general trend? यहाँ पे एक deviation दिख रहा है कि जो वैल्यू है 57801, 577, 579, 558 एंड 589, यानी कि वैल्यू कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है. पहले 801 से 57 हो गई, 577 से बढ़कर 579 हो गई, वहाँ से घट के अगेन 558 हो गई और फिर बढ़ के 589. तो वैल्यू कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है. इस वेरिएशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे?
in case of group 13. देखते हैं, on moving down the group ionization enthalpy generally decreases due to increase in the atomic size and shielding effect, जो कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने. Thus on moving down the group 13 ionization enthalpy decreases from boron to aluminium, but Ga, this gallium has higher ionization enthalpy than aluminium. Aluminium follows immediately after S block elements, whereas gallium follows after D block elements. The shielding effect provided by D block elements is not very effective. These electrons do not shield the valence electrons very effectively. As a result, the valence electron of gallium experience a greater effective nuclear charge than those of aluminium. तो जो गैलियम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जस्ट पास आता है, और डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो शील्डिंग उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है फॉर गैलियम. As a result, valence electrons of gallium experience a greater effective nuclear charge. Further, moving from gallium to indium, the ionization enthalpy decreases due to increase in the atomic size and the shielding effect. Again, shielding effect बढ़ जाएगा, तो यहाँ in case of indium, तो उस केस में भी जो एनर्जी है वो घट जाएगी. बट ऑन मूविंग फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, द आयनाइजेशन एंथैल्पी अगेन इंक्रीजेस. In the periodic group, thallium follows after 4f and 5d electrons. The shielding effect provided by electrons of both of these orbitals is not very effective. Again, 4f और 5d भी उतनी अच्छी shielding नहीं करते, इसलिए attraction ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है. Hence, the ionization enthalpy of energy of thallium is of the higher side, जो है वो ज़्यादा है. जहाँ शील्डिंग कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, वहाँ पर एनर्जी एंथैल्पी ज़्यादा होगी. जहाँ शील्डिंग ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, वहाँ पे एनर्जी जो है वो कम होगी एनर्जी की. Which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? इन दोनों में से पेयर में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और फ्लोरीन और क्लोरीन. So among oxygen and fluorine present in the same period of the periodic table, as fluorine atom has one proton and one electron more than oxygen, it has, and an electron is being added to the same shell, the electron size of fluorine is smaller than that of oxygen. तो साइज जो है फ्लोरीन का वो कम है, क्योंकि सेम शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा. एज द फ्लोरीन वन प्रोटॉन मोर देन ऑक्सीजन, इट्स न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट the incoming electron more strongly as comparison to nucleus of oxygen. प्रोटॉन भी एक ज़्यादा है, इसलिए अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड मोर प्रोटॉन्स. फ्लोरीन जो है विल अट्रैक्ट बेटर. ऑल्सो F needs only one electron to attain the stable noble gas configuration. Hence, the electron gain enthalpy of fluorine is more negative than oxygen. और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है. अमंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन belong to the same group of the periodic table, the electron gain enthalpy usually becomes less negative on moving down the group. However, in this case, the value of electron gain enthalpy for chlorine is more negative than that of fluorine. This is because the atomic size of fluorine is smaller than that of chlorine. In fluorine, the electrons will be added to quantum number n equal to 2, but for chlorine, the electron added to quantum number 3. Therefore, there are less electron repulsion in chlorine, as additional electron can be accommodated easily. अब यहाँ पे साइज भी सेम है, सेम शेल में हो रहा है, लेकिन फिर भी क्लोरीन में ज़्यादा इसलिए हुआ. क्यों होगा? क्योंकि जो शेल है वो बढ़ गई. n इक्वल टू 2 था क्वांटम नंबर फॉर फ्लोरीन, और क्लोरीन में n इक्वल टू 3 आ गया. साइज़ बढ़ गया तो रिपल्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में आसानी होगी. Hence, the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine. Next question. Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, or less negative than the first? Justify your answer. ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाली से ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, क्या कैसी होगी ये बताना है. When the electron is added to oxygen atom from O minus, it forms O minus ion, the energy is released.
दस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव। पहला जब गेन करेगा O गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म O माइनस गैशियस, तो इट इज़ नेगेटिव। जब सेकेंड बनाएगा ऑन द अदर हैंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O माइनस इट फॉर्म्स O2 माइनस, द एनर्जी हैज़ टू बी गिवन out in order to overcome the strong electron repulsion. Thus the second electron gain enthalpy of oxygen is positive. जब O माइनस से O2 माइनस बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए द सेकेंड एंथैल्पी इज पॉजिटिव विच इज O माइनस गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म O2 माइनस गैसेस। तो ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। What is the basic difference between terms electron gain enthalpy and electronegativity? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी आइसोलेटेड एटम की गैशियस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, whereas electronegativity is the measure of the tendency of an atom of a chemical compounds to attract the shared pair of electron। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी भी एटम की एक केमिकल कंपाउंड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स? हमको ये बोला गया कि पॉलिंग स्केल पे सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 होती है। इस पर कमेंट करना है। Electronegativity of the element is the variable property. It is different in different compounds. Hence, the statement which says that the electronegativity of N on Pauling scale is 3.0 for all the nitrogen compounds is incorrect. The electronegativity of nitrogen is different for NH3 and NO2. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हर एलिमेंट की अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होती है। इट वेरीज विद कंपाउंड। तो ये बात कहना कि पॉलिंग स्केल पे सभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ NH3 अमोनिया एंड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फॉर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने पे और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है ये बताना है। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट्स साइज इंक्रीजेस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड द नंबर ऑफ electrons goes up by 1. This results in an increase in the repulsion among the electrons. However, the number of protons remains same. As a result, the effective nuclear charge of the atom decreases and the radius of the atom increases. जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक नया तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो और दूर जाएगा, इसलिए साइज जो है एटम का वो बढ़ जाएगा। ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? When the atom loses electron, the number of electrons decreases by 1 while the nuclear charge remains same. Therefore, the inter-electronic repulsion of the atom decreases. As a result, the effective nuclear charge increases. Hence, radius of the atom decreases. जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए साइज जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।